Very good morning, dear students. We are already discussing chapter number 12, Consumer Protection. So today we will discuss Consumer Protection Act 1986. So in 1986, this act was passed by the Parliament and came into the force with effect from July 1st, 1987. Okay, so Consumer Protection Act 1986 has been presented as an important act in history. So it provides protection to consumers. Or this act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Okay, so it was amended in 1993 and 2003. It covers all the goods and services. So the act provides for the formation of consumer protection councils both at the center and in the state. Council has official and non-official members. इस काउंसिल में दोनों टाइप के मेंबर्स हैं और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज काउंसिल इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. सो देयर इज अ मेंशन ऑफ द सम राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इन द एक्ट. इसमें जो कुछ राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स के जो इसमें मेंशन किए हैं इस एक्ट के अंदर जो कि कंज्यूमर्स के लिए है, तो वो पूरी हमारी डिटेल है इस चैप्टर में. वी विल डिस्कस. Okay, next topic is salient features of Consumer Protection Act or scope of the Consumer Protection Act 1986. Scope or salient feature. First of all, coverage of item. So this act is applicable on all the products and services until or unless any product or services especially debarred out of the scope of this act by the central government. तो इसमें हर तरह की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो इंक्लूडेड है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज कवरेज ऑफ सेक्टर्स. तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, all sectors are included in this act. So this act is applicable to all the areas. Third is the compensatory nature of provision. So many acts have been passed. इसमें इससे पहले बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए एक्ट आए हैं जो हमने कल डिस्कस भी किए थे. So ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, that is the extra compensatory nature. And consumers can enjoy the benefits of this act. But if the consumer wish, the Consumer Protection Act can provide extra help. तब उसका इसकी benefits को ले सकता है. So as the result, the nature of provisions of this act is compensating for the loss or providing extra help. So consumer is totally free to enjoy the benefits providing in the act. Next point is group of consumers' right. So this act provides many rights to consumers. Okay, इस act के अंदर बहुत सारे rights दिए गए हैं consumers को. So these rights are related to जैसे safety, information, this act provides consumers regarding services, unfair trade, act करता है, safety करता है. So under the view of this act, they listen to all these activities which can pose a risk for consumer. ठीक है, उन सभी एक्टिविटीज पे बैन भी किया जाए. So next is three-tier कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. काउंसिल एक बनाई गई है जिसमें मैंने आपको बताया था ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं. सो टू फेवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टू एनकरेज कंज्यूमर अवेयरनेस, देयर इज अ प्रोविजन इन दिस एक्ट टू एस्टैब्लिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज द मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो इसके अंदर जिसको हमें फॉलो करना है. ओके, दैट प्रोविजंस वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी हैव टू नो. ओके, हमें ये पता भी होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर, the consumer who want to avail the benefits of this act should have the knowledge of these provisions. First is the meaning of consumer. Consumer है कौन, पहले तो आप ये देखिए. Under the Consumer Protection Act, any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. Okay, it includes
any user of with the approval of the buyer does not include a person who obtain goods or resale or any commercial purpose. Means यहाँ पर जो includes इसमें include when such use is made with the approval of the buyer, but does not include the person वो on goods इसमें include नहीं करेंगे जो resale के लिए commercial purposes के लिए purchase की गई है. Okay. Second point is any person who hires or avail of any service for the consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment. ये सब जिसमें कुछ पोर्शन पे किया गया है और कुछ नहीं किया गया वो भी इसमें इंक्लूड होगा, वो भी कंज्यूमर है. It includes any beneficiary of the service when such services are availed of with the approval of the persons concerned, but does not include a person who avail of such services for any commercial purposes. अगर डेफर्ड पेमेंट के साथ सिस्टम के साथ भी अगर परचेज किया है लेकिन अगर वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए है तो वो इंक्लूड इसमें नहीं होगा. ओके. सेकंड पॉइंट इज ग्राउंड्स द कंप्लेंट. First of all, first point is unfair restrictive trade practices. Means किसके against आप इसमें complaint कर सकते हो. First है इसमें when a consumer is victimized by unfair restrictive behavior of any businessman, then he can also complain. इस केस में वो complaint कर सकता है. Okay, it is necessary here to explain. जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा वो आपको पता हो. First point is unfair trade practices. क्या होती है unfair trade practices? It means to adopt a faulty way to gain excess profits by a trader. मतलब गलत तरीके से excess में profit कमाने के लिए just एक गलत तरीका choose करना. Okay. For example, to provide wrong information about goods and services. Okay. मतलब किसी भी तरह से goods और services को बेचने के लिए गलत information consumers को देना. In which we can include to launch gift scheme. जैसे गिफ्ट का लालच दे दिया और किसी भी तरह से अपने आइटम्स को सेल करवा दिया. ठीक है. डिस्पाइट आइदर द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट आइटम इज एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और क्वालिटी इज कंप्रोमाइज्ड. इस ऐसे होता है कि शो तो ऐसे करते हैं कि गिफ्ट जो है वो एक्स्ट्रा है बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी और गिफ्ट की कॉस्ट मिला के वो कंप्लीट कॉस्ट उसकी ले ही रहे होते हैं. ठीक है. तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. Second, to not allow the prescribed standards. जो standards उस पे mention है उसको follow नहीं करना. To resort to hoarding, that is even in case of the availability of the product, not selling it. चाहे वो available है product लेकिन उसको तब भी वो sell नहीं कर रहे हैं, उसको एक तरह के black marketing के लिए रख लेना. Okay. Next point is restrictive trade practice. ये क्या होती है restrictive? Restrictive trade practices means selling goods and services on some conditions. कुछ conditions पे हम goods को sell करना है to consumers by the traders. For example, a car seller sells car on the condition that along with the purchase of the car, one has to buy an insurance policy also. अब कार तभी वो सेल कर रहा है अगर उसके साथ वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी वो परचेज करता है कंज्यूमर. So in the same manner, if a gas agency, while giving a gas connection, puts a condition to buy gas stove also from him, then this is good. ये restrictive trade practices हैं. Okay, means इसमें क्या है कि एक चीज परचेज करने पे आपको सेकंड जो है वो कंपल्सरी परचेज करने के लिए अगर बोला जा रहा है तो at that is a restrictive trade practices. Okay, इसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो. Second point is defective goods. Consumer can file a complaint against defective goods. Defect means relate to the quantity, quality, potency or purity or of the product. Or goods are not in accordance with the related act or contract. Okay, जो भी contract या act जो जिसके accordingly भी लिखा है या तो goods उसके accordingly नहीं है या quantity या quality या purity में कुछ भी defect है. Okay, for instance, in a packet, if the quantity of material is not the same as original written on the bag. जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि जो इंस्टेंट नूडल्स का था उसमें कि 100 ग्राम पैकिंग पे मेंशन है बट स्टिल उसके अंदर जिसको वेट किया तो 80 ग्राम से उसका वेट है तो ये डिफेक्ट. So in the same manner, if the power potency of the standard potency, it is case of potency related defect. जैसे स्टैंडर्ड मीन्स होता है कि ना ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड क्वालिटी वाइज
क्वालिटी वाइज, जैसे ISI मार्क का भी हमने एग्जाम्पल दिया था कल, तो उस टाइप में अगर वो लिखा है बट उसके अकॉर्डिंगली वो गुड्स जो है वो उसकी उस स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, मींस जो सर्विसेज उन्होंने कहा है और बोला है पहले, लेकिन उसके बाद वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है, या डिले किया जाता है उसमें। So under this act, the consumer concerned can file a complaint against the defective or under related services. Underrated services. Some examples are given. For first one is unnecessary delay in the providing loans by the bank. ठीक है, delay किया है. Second है unnecessary delay in giving final touch of the claims by the insurance company. अब इंश्योरेंस कंपनी में हम इंश्योर कराते हैं, मीन्स अगर वो देने में टाइम लगा देते हैं, अननेसेसरली डिले करते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी कोर्ट केस हो सकता है। unnecessary delay in supplying goods by the transport company and wrong billing by electricity and telephone departments. Okay, next point, fourth point is excessive charging of price. कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राइजेस में एक्सेस प्राइस लिखते हैं, जो उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं वो चार्ज कर सकते, आपको पता है। सो कंज्यूमर कैन लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। एक्सेस चार्जिंग मीन्स ओवर चार्जिंग होता है, इस प्राइस जो रिटर्न है पैकेट के ऊपर, आप उससे ज्यादा वो एक्सेस में चार्ज नहीं कर सकते। So first of all, price written on the packet of the product. Second is price written on the product. जो पैकेट है, ये प्रोडक्ट है जो भी है, उसके ऊपर जो रिटर्न है प्राइस या डिसाइडेड बाय एक्ट, वही प्राइस होता है। तो फॉर एग्जांपल, इफ अ बुक सेलर चार्जेस ₹200 फॉर अ बुक which has its marked price ₹150, then it is case of the charging excess from the marked price. जो उसके ऊपर मेंशन है, रिटर्न है, उससे ज्यादा अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट केस हो जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज सप्लाई ऑफ हैजर्डियस गुड्स। हैजर्डियस गुड्स होती हैं जो 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 डेंजरस होती है फॉर हेल्थ। इफ द प्रोडक्ट्स व्हिच कैन प्रूव हैजर्डियस गुड्स फॉर लाइफ आर सोल्ड विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, their use, content, and effect, then the victim concerned can lodge a complaint. Some of the hazardous goods products are, जैसे प्रेशर कुकर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, है ना, कुकिंग गैस है, ये एक्चुअली अगर इनको हम गलत यूज कर लेते हैं सपोज, या किसी को इसका यूज करने का नहीं पता, तो इससे अपनी हेल्थ के लिए ये डेंजरस हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होनी चाहिए साथ ही साथ। ओके, नेक्स्ट इज, ये हम ग्राउंड किसके अंडर कर रहे थे, ग्राउंड फॉर कंप्लेंट। ओके, ग्राउंड फॉर कंप्लेंट, second point. Now the third point is three-tier judicial machinery. So three-tier judicial we will discuss in detail. Period. Under this act, there is a provision for disposal of complaints. It refers to the quantity, quality, potential, good accordance. जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली इन चीजों में अगर वो कहीं भी डिफेक्ट आता है तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है। Then the deficiencies, meaning of deficient services means, it means any imperfection, shortcoming, or inadequacy in the quality, nature, and manner of performance of services. Okay. Next, a complaint fees. With every complaint,
इस बहुत ज़्यादा नहीं होती है ये अमाउंट, बहुत नॉमिनल, और एनी अदर एक्सपेंसेस आर नॉट भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इसमें पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीव्स रिमूव डिफेक्ट्स। जो भी उस गुड्स में डिफेक्ट्स हैं, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही प्रायोरिटी रहेगी उस डिफेक्ट को रिमूव किया जाए। If after proper testing the product to be defective, then the remove its defect order can be passed by the authority concerned. Okay, second, replacement of goods. Second ये हो सकता है order can be passed to replace the defective product by the new non-defective product of the same. जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स आप कुछ भी परचेज करते हो, ये टीवी, फ्रिज, मशीनरी, कुछ भी, वॉशिंग मशीन, अगर इसमें से कोई भी डिफेक्टिव आ जाता है, कोई कोई पीस हो सकता है ना ऐसे, और विद इन गारंटी है आपका, तो आप चेंज कर सकते हो। और अगर कंपनी इसको मना कर देती है, इस केस में आप यहाँ पर कोर्ट केस करके ये लिए आप, ठीक है। ऑर्डर कैन बी पास टू रिफंड द प्राइस पेड बाय द कंप्लेंटेंट फॉर द प्रोडक्ट। जो भी आपने प्राइस उसके लिए पे किया है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्राइस रिटर्न कर दिया जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर केस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से, उस प्रोडक्ट की वजह से जो लॉस हुआ है, वो प्रोडक्ट का लॉस तो हुआ ही है, बट उसके साथ साथ और भी काफी लॉस हो गया। जैसे प्रेशर कुकर है, वो अगर सपोज कर लो, अगर वो ऐसे फट जाता है, तो उसकी वजह से और भी किचन का, या और कह लो कि हेल्थ का, या कुछ भी इस तरह से कुछ भी अगर नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए कंपनसेशन अगर आपको चाहिए, it because the negligence of the seller or consumer suffers physically or any other loss, then compensation for that loss can be demanded for. तो उसके लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल का अगर कोई एक्सपेंस है या कुछ इस तरह का खर्चा है, तो वो भी उनको देना होगा प्रोड्यूसर को। नेक्स्ट, रिमूव डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर उसने सर्विसेज में कुछ डेफिशिएंसी की है, देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन डिलीवरी ऑफ सर्विस, देन ऑर्डर कैन बी पास टू रिमूव दैट डेफिशिएंसी, कि ये इस बार जैसे जो भी उन्होंने गलती करी वो नेक्स्ट टाइम ना हो। फॉर इंस्टेंस, इफ एनी इंश्योरेंस कंपनी मेक्स अननेसेसरी डिले इन गिविंग फाइनल टच टू द क्लेम, then under this act order can be passed to immediate final claim. Point is discontinuance of unfair restrictive trade practices. ये भी देखो, if the complaint is filed against unfair restrictive trade practice, then that practice can be banned. कुछ अगर ऐसा है जिससे कि वाकई ही फिजिकली या कुछ भी किसी भी तरह से किसी भी लोगों का बहुत ही ज्यादा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में उन चीजों को बैन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गैस कंपनी मेक्स इट compulsory for a consumer to buy gas stove with the gas connection, then this type of restrictive trade practices can be with the great effect. अगर ऐसा वो प्रूफ हो जाता है तो भी कर सकते हैं। Then stopping the sale of hazardous, जो भी गुड्स जो लग रहा है कि डेंजरस है फॉर हेल्थ, उनके लिए उनको भी स्टॉप कराया जा सकता है। सेल। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ हैजर्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट से ही इनको हटाया जा सकता है ऑन द सीइंग द सीरियस adverse effect of the hazardous goods on the consumers. Such goods can be withdrawn from the market. The objective of doing so that such products should not be offered for sale. Next time मतलब उनको सेल के लिए मार्केट में भी नहीं रखा जाएगा, ठीक है, कर दिया जाता है। So these were the reasons every consumer had these provisions should have to know. So next topic is the consumers rights. ये consumer rights भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोग आगे हमें स्टेप लेना हो कि कंज्यूमर को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो उसकी क्या राइट्स है, ताकि उसको आगे कभी फर्दर उसको नीड हो तो उसको यूज कर सके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू सेफ्टी। right to this
This right, a consumer has the right to safety against such goods and services as are prejudicial to his health, life and property. Okay, for example, यह given है आपके पास, spurious and substandard drugs, appliances made of low quality raw material such as electric press, pressure cooker and low quality food products like bread, milk, jam, butter etc. ये सब हैं जो, इन सब में अगर कहीं पर भी कुछ हैजेरियस है, कुछ भी इस तरह से डेंजरस है जो कि हेल्थ के लिए खतरनाक है या जिसकी वजह से हम यूज करके हेल्थ कहीं भी किसी भी खतरे में आ सकते हैं, तो उसके लिए वहां से हमें सेफ होने का राइट है। और कंज्यूमर हैव द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट द लॉस कॉज्ड बाय सच प्रोडक्ट्स। तो एक कंज्यूमर को जो पूरा राइट है इन सबके अगेंस्ट केस करने का, अगर ऐसा उनको कुछ लग रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या फिर राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर हैज आल्सो द राइट दैट द he should be provided with all the information on the basis of which he decides to buy goods or services. उसको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना, जो भी वो गुड्स को या उसको सर्विसेज को परचेज कर रहा है उसके बारे में, ताकि वो इंफॉर्मेशन प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, मेथड ऑफ यूज ऑफ द कमोडिटी, ये सब वो सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर पता होनी चाहिए। सो दस अ प्रोड्यूसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑल सच इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि उनके साथ कुछ भी चीट ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू चूज। अब यहाँ कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना कुछ रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हमने देखी थी, जिसमें कि एक अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो सेकंड प्रोडक्ट को कंपल्सरी वो कह रहे हैं कि परचेज करना है। तो ये कुछ हमने देखी थी रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस थी वो। ठीक है ना, तो उन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी हमें यहाँ पर रखना है। तो यानी कि हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहते हैं। कंज्यूमर हैज द एब्सोल्यूट राइट to buy any good or services of his choice from among the different goods or services available in the market. First, no seller can influence his choice in an उनकी choice को से influence नहीं करना। When the seller does so, it will be deemed as his right to choice. वो उसको मतलब तरह से क्या कर रहा है, उसको मिसगाइड कर रहा है ताकि वो अपनी चॉइस को बदल दे, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट टू बी हर्ड, अ कंज्यूमर हैज द राइट दैट हिज कंप्लेंट बी हर्ड। अगर वो उसकी जरूरत है तो उसकी कंप्लेंट को सुनना है, सुनने की राइट होना चाहिए। सो अंडर द राइट द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर प्रेजुडिशियल टू हिज इंटरेस्ट। फर्स्ट राइट टू सेफ्टी, राइट करने करे हैं ये सारे राइट्स। अब इन राइट्स को अगर हम जानते हैं तो हैव रेलेवेंस ओनली ये तभी पैदा है इन सब चीज़ों का इफ द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल हिज कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अगर हमें राइट्स पता है लेकिन हम उनका यूज तो कर ही नहीं रहे हैं ना, तो फिर उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो दीज डेज सेवरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेट अप, इसमें आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटअप की गई हैं कंज्यूमर सर्विसेज के लिए, जिसमें है कंज्यूमर सर्विस सेल विद अ व्यू टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स द राइट टू बी हर्ड। उनको ये बताने के लिए कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे वो अपने आगे पहुंचा सकते हैं। सो द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू हियर द कंप्लेंट of the consumers and to take adequate measures to redress them. Okay, redress means यहाँ पर हम कोर्ट के थ्रू जो भी हम उनके साथ एक्शन लेंगे। So many daily newspaper have also a special column to entertain the complaints of the consumer. आप देखते हैं न्यूज़पेपर में भी एक स्पेशल कॉलम भी बना होता है जिसमें आप कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है उनमें सोर्स मेंशन किया होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि बाकी कंज्यूमर्स को भी अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। So this right provides होना चाहिए कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। So that this right provides compensation to the consumer against unfair trade practices of the seller. यहाँ से हमको compensate मिलेगा या तो प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट मनी रिटर्न ऐसा वो उसके लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी उनको मिल सकता है, हेल्प मिल जाती है।
और ये सब राइट्स भी हैं उसके पास. सो दिस राइट प्रोवाइड्स कंपनसेशन. ये राइट उनको प्रोवाइड करवाता है कंपनसेशन. ठीक है, अगर वो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ डील कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट कंफर्म टू दोज प्रॉमिस्ड बाय द सेलर, द बायर हैज द राइट टू क्लेम compensation. Okay, several redressal are consumer by way of the compensation. हमारे पास 3 तरह के हैं, ये मैंने अभी आपसे नेम बताए भी हैं आपको. such as the free repair of the product, taking back of the product with the refund. या तो उसकी रिपेयर करेंगे या फिर उसको रिटर्न करके देंगे आपको, या फिर उसका प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो रिटर्न करेंगे. इस कुछ भी इस तरह से हम यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, कंपनसेशन हो जाएगा. नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. So consumer education refers to the educating the consumers constantly with regard to their rights. Consumer education refers करता है कि consumers rights they belong from service and government measures to educate the consumer. बहुत सारी तरीके कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई क्वार्टरली मैगजीन उपभोक्ता जागरण उन्होंने ये बनाया हुआ है. तो दूरदर्शन टेलीकास्ट करता है एक प्रोग्राम जिसमें आता है ये संरक्षण उपभोक्ता का. एंड अपार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर डे ऑब्जर्व मार्च next right to basic needs. The basics means those goods and services necessary for every person. ठीक है, जो कि सबके लिए जरूरी है. इट इंक्लूड जैसे एडिक्वेट फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एनर्जी, कुछ इस टाइप की जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन. So all the consumers have the right to fulfill these basic needs. And last point is right to healthy environment. So this right provides the consumer protection against environmental pollution so that the quality of the life is enhanced. Not only this, it also stresses the need to protect the environment for the future generation as well. Healthy environment के लिए भी, ताकि pollution से ये हम अपने आप को सेव कर सकें. ठीक है, इसमें भी हमारा राइट है जानने के सबके लिए, और आगे की आने वाली फ्यूचर जनरेशंस की हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए भी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, next topic is consumer responsibilities that we will discuss later. And यहाँ तक आपका ये जो complete है. So students, you can revise these topics and write in your peer notes. So thank you. Have a nice day.